Hi everyone. So a lot of you must have started preparing for RBI Grade B 2026 examination and some of you might be thinking of starting it. कुछ लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें. There are a lot of confusions going on in their brains, in their heads कि हम कहाँ से actually RBI Grade B की preparation start करें. So my dear friends, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम के लिए, if you want to go for preparing any particular examination, so there are some basic things that you have to follow, right? First you need to go through the syllabus of that particular exam in depth. ऐसे नहीं कि बस syllabus पढ़ लिया. Then you must go through the previous year question papers. किस तरीके के questions पूछे गए हैं, कहाँ से question पूछे गए हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 3 से 4 साल का. And then you need to identify the difficulty level of those questions, and then you need to identify the cutoffs of the previous years. इस तरीके से पूरा you must know about that particular examination. ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. Don't worry, I am now starting the guidance videos for the upcoming RBI Grade B examination for the year 2026. But today let's start from a reality check, right? आज हम स्टार्ट करते हैं रियलिटी चेक्स के थ्रू. जब आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, when you are about to start preparing for RBI Grade B 2026, then what all things are there that you need to have, that you need to keep in your mind. ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई टेक योर 10 मिनट्स एंड देन फिर आप अपने घर और मैं अपने घर. ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है दैट RBI Grade B एग्जाम इज नॉट अ 2-3 मंथ प्रोजेक्ट. It is not a 2-3 month project. Every year I found thousands of students, not hundreds, thousands of students. कम से कम 3-4 हजार लोग मेरे पास ऐसे जरूर आते हैं हर साल right after the notification is released कि am I able to clear this examination or not. और मैं हमेशा बोलता हूं that for any एग्जाम साइकिल, चाहे 25 है, 26 का एग्जाम देने जा रहे हो या 27 का एग्जाम दोगे, you must start your preparation from the month of January, at least 6 to 7 months before the examination if you are a complete fresher, if you are a complete noob. It is not a 2-3 month project. Yes, if you are giving mains this year, if you have given mains of 2025 or maybe some previous years, then yes, for you it is a 2-3 month project. लेकिन जो कोई बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए ये 2-3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स. कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन आपको इसको देनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. देखो बहुत बेसिक सी बात है. एक नए बेबी को बॉर्न होने में 9 महीने लगते हैं, राइट? अगर वो 7 महीने में पैदा हो जाए तो क्या होगा? अनहेल्दी होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? So same is the case with RBI Grade B preparation. If it needs 6 months at least preparation, then if you will be giving, if you think that you are going to prepare it in the 2-3 months, then of course definitely it will be an incomplete preparation. It will be an unhealthy preparation, my dear friends. So it is not a 2-3 month project. ये 25 दिन में पैसा डबल होने वाली स्कीम की तरह नहीं है. लोग ऐसा सोचते हैं एंड जब नोटिफिकेशन आ जाता है then they are like this बाबू राव कि कम से कम 30 साल का टाइम तो मिलना चाहिए. उस टाइम लेकिन दोस्तों ट्रेन छूट जाएगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे. ऑलराइट, दैट इज दी वन. नंबर टू पे आते हैं. हार्ड वर्क अलोन डजंट क्लियर आरबीआई, डायरेक्शन डस. सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको सही डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, राइट? बिकॉज देखो मेहनत इस दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं. अब देखो एक ये चाय वाला है, इसने भी बहुत मेहनत करी, और फिर आप इस भाई को जानते ही हैं डोली चाय वाले को, इसने भी मेहनत करी है. ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके का क्रिंज कंटेंट बनाने लग जाओ या फिर क्रिंज तरीके से पढ़ाई करने लग जाओ, बट ठीक है, इसके पास एक डायरेक्शन थी, ये मजे ले रहा था अपने काम के. ठीक है, ही वाज नॉट जस्ट वर्किंग, ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क एंड टुडे यू कैन सी वेयर ही इज, कहां पे है ये आदमी. ठीक है ना? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा, आपके पास सही डायरेक्शन होनी चाहिए. अब इसका मतलब मेरा यह है कि ऐसा ना हो कि आप गलत सोर्सेज से पढ़ रहे हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस है तो फाइनेंस में आप पीएचडी करने चले गए. ठीक है, इतनी पढ़ाई कर ली आपने फाइनेंस में, लेकिन वो चीज नहीं पढ़ी जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ये गलतियां अक्सर वो लोग करते हैं जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड या फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड के होते हैं, राइट? या फॉर एग्जाम्पल आप कैट की तैयारी कर रहे थे पहले, है ना, और आपने इतनी इंटेंस क्वांट रीजनिंग की प्रिपरेशन कर डाली कि आप ये भूल गए कि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, आपने करंट अफेयर्स को या जनरल अवेयरनेस को
सॉरी, इस तरीके से पढ़ डाला कि यूपीएससी की तरह पढ़ डाला, बट इट इज नॉट अ यूपीएससी एग्जामिनेशन. So you need to do the hard work, but not only the hard work can help you in cracking this examination. You need to work hard on a right direction. सही डायरेक्शन में आपका हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आई विल डेफिनेटली कम अप विद द राइट सोर्सेज, द ऑल द गाइडेंस. बट अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया है, मेरा बस वार्निंग आप लोगों से ये है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अब उन्होंने तो लिख दिया फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और टॉपिक लिख दिया डेरिवेटिव्स. अब अगर आप डेरिवेटिव्स भी पढ़ने जाओगे तो उसमें आप 2 महीने पढ़ सकते हो आराम से, इतनी चीजें हैं उसमें पढ़ने के लिए. बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट हेयर टू डू द पीएचडी, वी आर हेयर टू क्रैक द एग्जाम. दैट इज द होल आइडिया, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? चलिए, ये हो गई दूसरी बात. तीसरी बात क्या है भाई? आई विल डू द फेज 2 लेटर. इस साल 2025 में जो एग्जाम हुआ उसके बाद, फेज 1 क्लियर होने के बाद, आई गॉट अ कॉल, आई गॉट अ मैसेज, आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस. अब हम क्या करें? अब आप कुछ नहीं कर सकते. मेरा सिर्फ एक ही आंसर था, माय डियर फ्रेंड, यू कांट डू एनीथिंग नाउ. लोग कहते हैं कि हम फेज 2 की प्रिपरेशन तो कर लेंगे, पहले फेज 1 तो निकले. अरे भाई, आर यू हेयर, आर यू देयर टू क्रैक द फेज 1 एग्जामिनेशन, or are you here to get a job in RBI? And for that, of course, my dear friends, you need to clear the phase 2, and of course you need to clear the interview. तभी तो होगा कि ऐसी हो जाएगा कि फेज 1 तो निकल जाएगा, फिर देखेंगे. अरे नहीं. और कुछ लोगों का ये भी एटीट्यूड होता है कि यार ठीक है, एग्जाम दे के देखते हैं फेज 1 कैसा जाता है. नहीं, दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड. योर फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, एंड इट इज ऑलवेज. फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हमेशा बेस्ट अटेम्प्ट होता है. सेकंड अटेम्प्ट में आते आते आप डेफिनेटली थोड़े से डिमोटिवेट तो होते हैं, मानो या ना मानो, बिकॉज आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट, आई नो ऑल दीज थिंग्स. आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो आई विल डू द फेज 2 लेटर वाली जो चीज है दोस्तों, वो मत करो. तैयारी आज से करो फेज 2 की और फेज 1 की. इफ यू आर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सो यू नीड टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. उसके बारे में मैंने आपको टाइम टेबल में ऑलरेडी बता दिया. मैं एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा, डोंट वरी. तो 2 सब्जेक्ट्स आपको एक साथ उठाने, एक फेज 2 का, एक फेज 1 का. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने फाइनेंस और क्वांट उठा लिया, उसको अगले 1.5 महीने में खत्म करो. फिर आपने मैनेजमेंट और रीजनिंग उठा लिया, उसको अगले 1.5 महीने में खत्म करो. फिर आपने लास्ट में ईएसआई और गवर्नमेंट स्कीम्स कर लिया, और अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको वो भी करना है. तो बेसिकली द पॉइंट इज यू नीड टू स्टडी फॉर फेज 2 फ्रॉम टुडे. ठीक है, फेज 2 के लिए आज से पढ़ना है. जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप फेज 2 पे ब्रेक लगा सकते हो. उसके बाद यू कैन जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, annual reports and surveys, and quant reasoning in English, and of course the mock test of phase 1. But not before that. You need to complete the syllabus of phase 2. आपका नोटिफिकेशन आने से पहले फेज 2 का सिलेबस एक बार कंप्लीट और 2 बार रिवीजन होना चाहिए. ठीक है, वरना ये भाई की तरह हालत हो जाएगी. फेज 1 से पहले तो आप देखो इतने स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बने फिरते हो, लेकिन बाद में हवा निकल जाती है अच्छों की. मैंने देखा है. ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, और इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही कुछ वार्निंग्स देने आया हूं. बैकग्राउंड गिव्स नो एक्स्ट्रा एडवांटेज. बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है. अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर विद दिस गलत फहमी दैट if they are from commerce background, or maybe if they have done MBA finance, or if they are from science background, or if they are from humanities background, they have an edge. No, nobody has an edge in this particular examination. Only that person has an edge who does right amount of hard work in right direction with right strategy. उसी के पास है. अब आप देखो, मैं मानता हूं कि कॉमर्स वाले जो होंगे उन्होंने फाइनेंस पढ़ी होगी, उन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, आई एग्री. लेकिन साइंस वालों ने क्वांट रीजनिंग में तेज होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले इंडियन इकोनॉमी में तेज होंगे, बीटेक वाले क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मैनेजमेंट में तेज होंगे. जो बीकॉम करके बैठे हैं, ये क्या होगा, या जो बीकॉम करके बैठे हैं, 1 सेकेंड, व्हाट्स दिस, हाँ जी, जो बीकॉम करके बैठे हैं, अगेन वो इंडियन इकोनॉमी में तेज हो सकते हैं. तो बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका एडवांटेज क्या है. अब ये मत, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुने हैं, दे कीप ऑन सेइंग दिस थिंग दैट सर माय फ्रेंड इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ही हैज एन एडवांटेज ओवर मी बिकॉज आई एम फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर niche. You need to identify that area where you can be an advantage, where that particular thing can be an advantage for you. For example, nobody is perfect in all the subjects. There is quant, reasoning, English, current affairs, government schemes, everything are there. Everything is there.
देयर इज फाइनेंस, देयर इज मैनेजमेंट, अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। और कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों जो कि हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर एडवांटेज एंड यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। क्लियर? और ये नहीं सोचना है कि यार उसके पास तो बहुत एडवांटेज है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास भी एडवांटेज है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एडवांटेज और द एज, राइट? एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स बट नॉट द लीस्ट, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेंटल फटीग एंड बर्नआउट। आप आज से 6 महीने अगर लगातार पढ़ोगे, ये कुछ गड़बड़ हो रही है स्क्रीन में, बट एनीवेज, आप आज से 6 महीने तक लगातार पढ़ते रहोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं किसी से भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, मैं अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता दैट आई कैन कंटिन्यूसली स्टडी फॉर 6 months daily, maybe 4 or 5 hours. That is not possible. That is definitely going to lead to the burnout. ठीक है, डेफिनेटली बर्नआउट तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि बर्नआउट होते होते ये भाई की तरह हरकतें करने लग जाओ आप। ठीक है, ये इनका कंटेंट बनाने का तरीका, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द थिंग्स, राइट? आई एम नॉट जस्ट, जो भी इनके फैंस होंगे प्लीज ऑफेंड नहीं होगा कोई भी, या फिर यू नो डोली चाय वाला के जो फैंस हैं, खैर उनकी तो मैंने तारीफ ही करी है, यहाँ पे भी इनका कंटेंट बनाने का ये तरीका है, दिस इज हिज वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे पीएस बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू जस्ट टू यू नो क्रिटिसाइज एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द थिंग्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मेंटल फटीग और बर्नआउट इस तरीके का आ गया कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ के बैठ गए कि नहीं छोड़ो नहीं पढ़ना है। इसीलिए डू रिमेंबर यू नीड टू टेक दी अप्रोप्रिएट ब्रेक्स। आपको अप्रोप्रिएट ब्रेक्स दोस्तों लेने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, राइट? और अप्रोप्रिएट ब्रेक्स का मतलब क्या है? जैसे ही आपको लगने लगे यार अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जस्ट गो फॉर अ ब्रेक फॉर अ डे। पूरे दिन का ब्रेक ले लो, और उस एक दिन के ब्रेक में गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं बैठ के, फिर वो ब्रेक नहीं होगा, फिर वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ब्रेक का मतलब ये भी नहीं है कि हर 1 घंटे में ब्रेक लिया जा रहा है, नहीं, अगेन, सो दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंट थिंग, राइट? तो मेंटल हेल्थ का आपको अपनी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, बिकॉज आई हैव टॉक्ड, आई हैव यू नो डिस्कस दिस थिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको इस चीज में प्रॉब्लम होती है। सो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि आप लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। यू शुड प्रिपेयर इन अ वे दैट इट डज नॉट लीड टू द बर्नआउट और द मेंटल फटीग। ठीक है जी, तो ये थी 5 बातें दोस्तों जो कि मैं करना चाहता था आप लोगों के साथ। आई होप आपको चमकी होगी। बाकी और वीडियोस के साथ मैं अब आपके सामने आऊंगा फॉर हेल्पिंग यू इन क्रैकिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2026।